ओके, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. वी हैव सीन ऑलरेडी द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन लास्ट लेक्चर. ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो हमने ये समझा था कि फोर्स ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, व्हेन मास इज कांस्टेंट and when the mass is variable, then in that case, and suppose velocity is constant, then force is always equal to velocity into rate of change of mass. And if suppose both are variable, then in that case force is actually equal to the mass into rate of change of velocity plus velocity into rate of change of mass. ठीक है, that means product rule use करना पड़ता है. But how many of you know that the Newton's second law, the force is equal to mass into acceleration. इसके अंदर ये जो force है ये actually net force है, which can be supposed to be the sum of all the forces. ठीक है, we can just say the summation of F. क्योंकि हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हो. ठीक है नहीं, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ सपोज दिस इज द बॉडी and suppose it's acted upon by some forces in right direction, and some forces are going to be in the right direction or left direction like this. ठीक है, सपोज एक 5 न्यूटन, एक 7 न्यूटन और 9 न्यूटन, ये फोर्स जो है वो उसको राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. और एट द सेम टाइम सपोज एक 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का एक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है. So how can we express this Newton's second law for this body here? If suppose its mass is going to be suppose m, and it just gets accelerated in this direction with an acceleration a, then what is the relationship between the mass, acceleration, and the force in this case here? So what we have to say is this force of 9 Newton has to be considered to be 9 I bar, because it is going to be in the right direction. So therefore it will be a vector and it will be represented in terms of I bar. And again here's this 7 Newton force will be just added up to this 9 Newton here, and this 5 Newton also will just be accompanied by I bar only, and these two forces which are going to be in opposite directions, so they will be just -3 yes I bar subtract हो जाएंगे वो. So you can say -3 I cap minus 2 I cap. So this whole thing will actually mean the नेट फोर्स. ये जो हम देखते हैं ना कि नेट फोर्स जो होता है, तो ये समेशन ऑफ फोर्स का मतलब यही होता है. दिस इज द समेशन ऑफ फोर्स व्हिच मस्ट बी एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हियर. मे बी दैट these forces may be in different directions also, need not to be in the x-axis only, but maybe that this body is acted upon by number of forces, one of which is going to be here F1 bar, which will be expressed in terms of I bar and J bar in a separate way. Then here it is F2 bar, which is going to be the another force which can be expressed again in terms of I bar, J bar, K bar. And suppose there is another force which is going to be here in this direction, which will be actually F3 bar here. And suppose that under the action of all these three forces, the body suppose is moving in this direction with an acceleration A bar, then what can we say? How can we apply the Newton's second law for this body? If its mass is m, then we can say that this F1 bar plus F2 bar plus F3 bar is actually going to be equal to this mass m of the body into the acceleration of this body a bar, which is again going to be in terms of expressed in terms of I bar, J bar, and K bar here. So this is the Newton's second law to be applied in case when the number of forces are acting on a same body साइमल्टेनियसली. ठीक है, अगर एक ही बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं, तो उस केस में हमको ये करना पड़ता है. वी विल हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, नॉट ओनली सम, एक्चुअली द वेक्टर सम. ओके, वेक्टर सम हमको ढूंढ के निकालना पड़ता है, एंड दैट वेक्टर सम विल एक्चुअली बी कॉल्ड एज द नेट फोर्स व्हिच विल बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए जैसी. सर ये सेकंड एग्जांपल में सर, हाँ बोलो सर. ये सेकंड एग्जांपल में ये ना ही एग्जैक्टली आई डायरेक्ट मतलब आई के साइड पे है, ना ही जे के साइड पे, तो फिर इसे कैसे लिखेंगे हम? तो उसके लिए तुमको उसका जो एंगल बना हुआ है वो एटलीस्ट पता होना जरूरी है.
देखो सपोज ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और ये एंगल सपोज दिया हुआ है 30 डिग्री और ये सपोज है 45 डिग्री। तो उस केस में हम इस F1 उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना जरूरी है। सपोज उसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका सपोज 20 और इसका सपोज 30। तो F1 बार कैन बी इजीली फाउंड आउट टू बी सिंपली इक्वल टू 10 cos 60 into I cap plus 10 sin 60 into J cap. समझा ठीक से? That means we have resolved this F1 bar into components, one of which is horizontal and other one is vertical. Similarly, we can just resolve this second F2 bar also in two components, one of which must be along x-axis, another one is along y-axis. So the component along x-axis will be accompanied by I bar, and the component along y-axis will be accompanied by J bar. Actually, minus J bar in this case because it is downwards. So F2 can be written to be 20 cos 30 I bar. Okay, 20 cos 30 I bar minus क्यों? क्योंकि downwards है। तो 20 sin 30 into J bar. That's all. So this is 20 sin 30 J bar. एंड रही बात F3 बार की, तो सेम वही कर सकते हैं यहाँ पे भी। इसका मैग्नीट्यूड 30 है और उसका एंगल 45 बना हुआ है, तो उसको भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक जिसका हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा वर्टिकल होगा। इसमें से हॉरिजॉन्टल जो है वो cos 45 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, मींस 30 इंटू cos 45 इंटू आई बार, इनफैक्ट माइनस आई बार। तो यहाँ पे वो बनेगा माइनस ऑफ 30 इंटू cos 45 इंटू आई कैप प्लस ये जो y कंपोनेंट है वो 30 sin 45 इंटू जे कैप के बराबर रहने वाला है। तो दिस इज 30 sin 45 इंटू जे कैप। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। ओके, तो फोर्सेस चाहे कौन से भी डायरेक्शन में हो, कैसे भी हो, पूरे प्लेन के अंदर किधर भी हो, कोई परवाह नहीं, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन हमको पता होना जरूरी है। अगर वो भी नहीं पता तो फिर तो नहीं कर सकते, फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि फिर उस केस में हमको सिर्फ उनको वेरिएबल फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, F1 बार F2 बार ऐसे ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका डायरेक्शन पता है, चाहे एंगल के फॉर्म में हो या चाहे ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ या 30 डिग्री वेस्ट ऑफ ईस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा फॉर्म में हो, कैसे भी करके एंगल पता होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड हमको पता होना चाहिए। तो उस केस में हम उसको आराम से आई बार जे बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक बार आई बार जे बार के फॉर्म में आ गया तो उसके बाद फिर उसका हम रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं आराम से, सिंपली एडिशन करके, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। And once we express it in terms of I bar, J bar, K bar, we can just find out the resultant. And once we find out the resultant, we can just apply the Newton's second law on it in this way. Okay, so let us take the screenshot of this, and then we'll just discuss about the Newton's third law, and then we have to discuss about the free body diagram and motion of connected bodies. ओके तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि whenever force acts on a body due to another body, मीन सपोज एक ए बॉडी अगर दूसरे बॉडी के ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट करता है, ए exerts a force on B in this direction, suppose you can call it as FBA. okay, FBA मतलब the force acting on B due to A. At the same time, this B also exerts the same force on A in the backward direction, and we can call it as FAB, which is nothing but the force exerted on A due to B. Obviously, when they will come into contact, अभी जरूरी नहीं कि दोनों कांटेक्ट में आने ही चाहिए। देयर आर सम फोर्सेस व्हिच एक्ट विदाउट कांटेक्ट। ऐसे भी कुछ फोर्सेस होते हैं जो बिना कांटेक्ट के काम करते हैं। अभी जो कांटेक्ट के वजह से काम करते हैं उनको कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। ये भी हमको आगे चल के सीखना है, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो बॉडीज जब कोलाइड होते हैं तो दिस कोलिजन इज अ कांटेक्ट फोर्स, और फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, और पुश और पुल, स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है या स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है, ये सब जो है वो कांटेक्ट फोर्सेस है। लेकिन देयर आर सम नॉन कांटेक्ट फोर्स आल्सो। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन से है?
देखो एक मैग्नेट जो होता है कि नहीं, मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ यस पोल, सर। और दूसरा मैग्नेट साउथ अगर पोल। उसके आसपास लेके जाओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सपोज इस तरह से, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, इसको नजदीक लेके आएंगे तो ये इस तरफ भागेगा, बिना टच करने के बाद भी वो भागेगा। ठीक है, मतलब टच किया बिना भी भागेगा। इसका मतलब ये जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बट वो फोर्स एक्सर्ट करने के लिए उसको टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है। सो सच अ फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, and magnetic force is one of the example of that non-contact force. Even electric force is also the example of non-contact force. If we have a charge, positive charge and a negative charge here, then they will be attracted to towards each other by using a electrostatic force of attraction, which is again a non-contact force only. Even all the planets revolve around the sun in circular orbit. ठीक है, so this is also a non-contact force. ठीक है, अभी जो प्लैनेट्स है और सन है उनके बीच में कोई रस्सी तो बंधा हुआ नहीं है जो इसकी वजह से वो घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि उन दोनों के बीच में काम करता है, जिसकी वजह से ही वो घूम सकते हैं, घूमते रहते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, रिमेंबर। तो इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा भी फोर्स हो, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ट्रू फॉर एनी फोर्स। तो हर एक फोर्स के लिए हमेशा ये होता है कि अगर सपोज एक बॉडी के ऊपर अगर दूसरे बॉडी की वजह से कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस केस में दूसरा बॉडी भी पहले वाली बॉडी के ऊपर उसी समय उतना ही फोर्स एक्ट करेगा, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जैसे कि अगर मान लो किसी दीवार को अगर हम पुश करते हैं, मान लो इस दीवार को या इस बोर्ड को मैं पुश कर रहा हूँ, तो ये दीवार तो पुश नहीं होगा, लेकिन वो दीवार ही मुझे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो दैट इज द रिएक्शन फोर्स वी कैन से। तो इस तरह से जो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर्स, ऑलवेज अपीयर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये हमेशा होता है कि जब भी कोई एक्शन होता है, एक्शन मतलब एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो भी उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको कि रिएक्शन कहा जाएगा। जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि टू फोर्सेस ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर्स। एक सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का अनदर स्टेटमेंट है। दूसरी भाषा में हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अ सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है, और वी कैन जस्ट से दैट द फोर्सेस अपीयर इन पेयर्स इन द नेचर। मतलब नेचर के अंदर अगर फोर्सेस अपीयर करते हैं तो वो पेयर्स में करते हैं, या तो फिर कोई भी नहीं करता है। मतलब अगर है तो दो होंगे, या तो एक भी नहीं होगा। तो ये इसका मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी फुटबॉल को किक मारते हैं, समझो ये फुटबॉल है और इसको हम किक मारते हैं पैर से, तो जब हम किक मारते हैं तो वो किक मारने के टाइम हमको भी तो कुछ लगता है कि नहीं? ये जो हमको लगता है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस फुटबॉल ऑन द लेग। तो जब हम इस फुटबॉल को किक लगाते हैं, ये सपोज लेग है, तो जैसे हमने किक किया तो उसकी वजह से जब जब जिस मोमेंट तक, जिस समय तक हमारा पैर इस फुटबॉल के कांटेक्ट में रहता है, तो ना सिर्फ पैर इस फुटबॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, बल्कि फुटबॉल भी पैर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये दोनों जो है वो एक्शन रिएक्शन बनते हैं। अच्छा, अभी इसमें एक बात याद रखो कि एक्शन और रिएक्शन, इनमें से कोई भी एक्शन और किसको भी हम रिएक्शन ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैर ने जो फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसको एक्शन बोलना है, और फुटबॉल ने जो फोर्स एक्सर्ट किया उसको रिएक्शन बोलना है। नहीं, उल्टा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय फुटबॉल ऑन द लेग कैन बी सपोज टू बी एक्शन, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय लेग ऑन फुटबॉल कैन बी सपोज टू बी रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले होता है और रिएक्शन बाद में होता है, बिल्कुल नहीं। याद रखो ठीक से, एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे होते हैं वो दोनों। याद रखो, ऐसा नहीं कि एक्शन पहले होता है उसकी वजह से रिएक्शन होता है, ऐसा भी नहीं है कि एक्शन रिएक्शन का रीजन होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दोनों जो है वो आते तो साथ में है, और नहीं तो फिर कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। सपोज क्रिकेट का बैट है, और वो बैट से अगर सपोज हम बॉल को हिट करते हैं, समझो ये बॉल है, इस तरफ आ रहा है, इसको टच करता है और फिर वापस चला जाता है।
तो इस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि जितने समय तक ये बॉल इस बैट के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो उतने समय तक ना सिर्फ बैट बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, बल्कि बॉल भी बैट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी की वजह से तो बैट का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है। देखा होगा तुमने, बैट का स्पीड स्लो डाउन होने का वही रीजन होता है। ठीक है, अगर कोई फोर्स ना होता तो बैट का स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए, लेकिन बैट का स्पीड चेंज होता है क्योंकि बॉल के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है बैट के ऊपर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से ही उस बैट का स्पीड कम हो जाता है। और बैट की वजह से जो बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसकी वजह से उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है और स्पीड भी चेंज हो जाता है। नो डाउट वो तो होता ही है, लेकिन बैट भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये हमको समझनी बात है। इवन अगर सपोज मान लो कोई, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि सपोज अगर हम कोई एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अगर मारता है, मान लो हमने किसी को जाके चाटा मारा, तो क्या वहां पे एक्शन रिएक्शन काम करेगा? न्यूटन यस सर, करेगा ना, करता है। होगा सर। कैसे बताओ? मान लो मैंने किसी को चाटा मारा, तो उसका रिएक्शन किधर है? सर जिसको मारते वो मतलब फेस को भी हाथ को भी थोड़ा फोर्स लगेगा सर। यस, दैट इज तो टू थिंक साइंटिफिकली। हमको साइंटिफिकली सोचना है, ठीक है? ये नहीं कि नहीं तो कोई बोलेंगे कि मान लो उस पर्सन को मैंने चाटा मारा, तो जिसको चाटा मारा वो मेरे को उठ के चाटा मारेगा। ये नहीं है उसका रिएक्शन। दिस इज नॉट अ रिएक्शन एक्चुअली। ये एक्शन रिएक्शन वो तो चलो फिलोसॉफी में हो सकता है, बोल सकते हैं ऐसा कि चलो फिलोसॉफी के अंदर ये अगर किसी को हम मारेंगे तो वो भी हमको मारेगा, तो वो हो गया फिलोसॉफिकल, दैट इज नॉट साइंटिफिक। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जब हम किसी को चाटा मारते हैं, तो जब तक हम हमारा हाथ उसके गाल के कांटेक्ट में रहता है, तो ना सिर्फ हम चाटा मार रहे हैं, मतलब ना सिर्फ मारने वाला मार खाने वाला फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बल्कि मारने वाला भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को मार रहे हैं तो बिना मार खाए हम मार ही नहीं सकते, ये समझो ठीक से। जब हम किसी को मारते हैं तो हमको भी लगता है कि नहीं, कुछ हमको भी लगता है। दैट इज एक्चुअली द रिएक्शन एंड इट टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि हमने उसको मारा और उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद या 2 मिनट के बाद उसके फिर वो हमको मारेगा, ये उसका रिएक्शन नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो ये हमको समझना है कि whenever we apply the Newton's third law here, we have to understand it in the same way that whenever the force acts from one body to another body, then the other body also exert the same force on the first body, and this is actually the reaction. So सर ये actually स्पेस में ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। क्या क्या? सर ये स्पेस में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होता है सर। यस यस यस, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ये समझा कि whenever one body exerts a force on another, the another body also exerts the same force on the first one. इसमें एक बात अच्छी तरह समझो जो उनको बहुत सरप्राइजिंग लगेगी एक्चुअली। ये तुमको पता है कि all the bodies on earth just get attracted due to the earth gravitational force towards the center of the earth, करेक्ट है? सपोज यहाँ पे ये एप्पल है, ओके, दिस इज एप्पल एंड दिस इज अर्थ। नाउ सपोज दैट ये एप्पल का जो वेट है वो एक्चुअली उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इस एप्पल के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा अर्थ के ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से, तो वो उसके वेट के बराबर होगा। तो हम वो निकाल सकते हैं आराम से। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एप्पल ड्यू टू अर्थ विल एक्चुअली बी इक्वल टू द मास ऑफ द एप्पल, which may be suppose 50 gram, and that is multiplied by gravity which is 980. अब ये सीधे सिस्टम कंसिडर करेंगे हम। सो ये कितना हो गया, बोल सकते हैं यहाँ पे ये 98 इंटू 5 कितना होता है 490, और उसके ऊपर 3 zeros, तो ये एक्चुअली बन जाएगा यस यस। सो दिस विल बी द फोर्स इन डाइन। सीजे सिस्टम हमने यूज किया है, ठीक है, तो आंसर भी डाइन में आएगा। ठीक है, अब या चलो अगर उसको कन्वर्ट भी करना है न्यूटन में तो भी 5 डिजिट पीछे शिफ्ट कर सकते हैं उसको, तो वो 0.49 न्यूटन ये मिल जाएगा। चलो ठीक है, न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, तो न्यूटन इतना 0.49 न्यूटन, ये चलो 0.5 न्यूटन इतना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है अर्थ की वजह से एप्पल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, द क्वेश्चन हियर इज दैट
how much force is exerted on earth in the upward direction due to apple, उसको हम बोलेंगे FEA, force exerted on earth due to apple. कौन बताएगा? How much force is exerted by earth, sorry, सर by नेग्लिजिबल होगा, apple on the earth? Yes, how much? सर नेग्लिजिबल होगा फोर्स। You are wrong. सर GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ, तो देखो ना फॉर्मूला, अभी इसको निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया? फोर्स निकालने के लिए जी एम, सपोज मास ऑफ अर्थ इज सपोज कैपिटल एम and the mass of apple is very small, so it is small m upon r square. ठीक है, this is the force exerted on the apple due to earth, but I am asking about the force exerted on earth due to apple. एप्पल की वजह से अर्थ के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखो जी वैसे ही है, कैपिटल एम दैट इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम दैट इज द मास ऑफ एप्पल, दैट इज अपॉन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। वो तो सेम ही मिल गया कि नहीं? वो तो बिल्कुल सेम है। तो सीधा ये बात है कि जितना फोर्स अर्थ एप्पल के ऊपर एग्जर्ट करता है उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ के ऊपर एग्जर्ट करता है ऊपर के डायरेक्शन में। दैट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल विल बी एग्जैक्टली सेम, दैट इज 0.49 न्यूटन। बट व्हाई एप्पल सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स अर्थ देन? क्यों ऐसा होता है कि एप्पल अर्थ पे जाके गिरता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि अर्थ जो है वो एप्पल पे जाके गिरता है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो वो दोनों पे काम कर रहा है ना, सिर्फ एप्पल पे थोड़े काम कर रहा है। एप्पल सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा सा है ना, और एप्पल का मास थोड़ा सा है बस। हाँ, और एप्पल अर्थ का का मास इतना छोटा है, मास ऑफ एप्पल इज वेरी स्मॉल एंड दैट्स व्हाई इट्स एक्सेलरेशन इज वेरी लार्ज। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल सपोज, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दिस फोर्स F has to be divided by the mass of apple, which is going to be very small, almost 0.50 gram, which is very small, and that's why the acceleration of the apple comes out to be 9.8 meter per second square, which is very large. But if you want to find out the acceleration of the earth, ठीक है, ये अर्थ किस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करता है, वो अगर हमको निकालना है तो देखो इसको हम A डैश बोल देंगे, जो कि उतना ही फोर्स जो एप्पल पे काम कर रहा है उतना ही वही फोर्स यहाँ पे हम यूज करेंगे, जिसको हमको डिवाइड करना होगा मास ऑफ अर्थ से। अभी मास ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ा है कि नहीं? मास ऑफ अर्थ के अंदर अगर तुम देखते हो तो मास ऑफ अर्थ इज एक्चुअली 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो ये 6 को छोड़ो, 10⁻24 का भी अगर कंसिडर करो तो यहाँ पे मास के बदले 10⁻24 इधर डिनोमिनेटर में आने वाला है, वो ऊपर में जाके क्या होगा? ऑब्वियसली 10⁻24 बन जाएगा कि नहीं? और 10⁻24 मतलब कितना? ये इतना छोटा नंबर है जो 0.000000 कितने 24 जीरो लगाने पड़ेंगे, उसके बाद कोई तो भी नंबर आएगा। वो इतना छोटा नंबर होगा जो कोई काम का ही नहीं है। That's why we can say that the acceleration of the earth is not significant at all here, because the mass of earth is so large that this much small force will not be able to produce any acceleration in the earth in the upward direction, and that's why earth almost remains at the same position. But इसमें समझने की बात यह है कि force is not the different actually। हमारे मिसकंसेप्शन क्या होता है हमारा कि फोर्स एप्पल छोटा है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट होगा और अर्थ बड़ा है इसलिए उसके ऊपर कम फोर्स एक्ट होगा। ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब एप्पल छोटा है इसलिए एप्पल कम फोर्स एक्सर्ट करेगा अर्थ के ऊपर, और अर्थ बड़ा है इसलिए अर्थ ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा एप्पल के ऊपर। नहीं, दोनों के मास के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। ये देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के अंदर m1 m2 है ना, प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 इज ऑलरेडी देयर इन दिस फोर्स, फॉर्मूला फॉर द फोर्स। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, not only on one mass actually. So therefore जो भी फोर्स है, चाहे अर्थ के ऊपर काम करने वाला फोर्स हो या एप्पल के ऊपर काम करने वाला फोर्स हो, दोनों फोर्स निकालने के लिए हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर मास का प्रोडक्ट आने वाला है, जिसकी वजह से फोर्स एक्चुअली वही आने वाला है। तो फोर्स इज गोइंग टू बी द सेम, बट ओनली एक्सेलरेशन इज डिफरेंट बिकॉज मास इज डिफरेंट। तो मास अलग अलग होने की वजह से ये हमको नजर आता है कि एप्पल अर्थ के ऊपर गिरता हुआ दिखाई देता है, या इवन हम देखते हैं ना कि मून अर्थ के आसपास घूमता हुआ दिखता है, ठीक है, ना कि अर्थ मून के आसपास घूमता है।
क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और मून का मास कम है, उसकी वजह से मून अर्थ के आसपास घूमता है। और इवन वही बात अगर अप्लाई करो सन और अर्थ के बीच में, तो वो भी हम देख सकते हैं कि अर्थ appears to be moving around the sun, not sun revolves around the earth, because sun is more massive than earth. तो अर्थ का मास बहुत छोटा है, सन का मास बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ और अदर प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट जो है वो सन के आसपास घूमते हैं। ठीक है, तो ये सब मास की वजह से होता है याथोगोडिक से। लेकिन फोर्स की जहां तक सवाल है, तो फोर्स इज गोइंग टू बी द सेम, एग्जैक्ट सेम, फोर्स में कोई चेंज नहीं है। So this is the Newton's third law of motion. You can just understand. And now we can just talk about the law of conservation of momentum. See, law of conservation of momentum, which is one of the most important tool in solving many MCQs or numericals. अभी law of conservation का मतलब तो तुमको पता होगा। You already know the law of conservation of energy. What does it tells us? Energy cannot be created nor it be destroyed. It can be just transferred from one form to another form. The same way here, law of conservation of momentum tells us that the total momentum of a body or number of bodies remains always constant so far as the no external force acts on the body. Remember, जब तक पूरे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तब तक पूरे बॉडी का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। बट रिमेंबर दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन वी कैन नॉट यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अगर कोई पूरे सिस्टम के ऊपर कोई अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट रहेगा, बट मोमेंटम चेंज होगा अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है तो। लेकिन हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। जिसका एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे देखो, सबसे पहली बात, अगर सपोज एक बुलेट है या कोई भी एक मार्बल है, मार्बल, ठीक है, एक कांच का एक टुकड़ा है, सर्कल स्फेरिकल इस तरह से, और ये इस तरफ भाग रहा है। समझो इसका मास 5 ग्राम है और इसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, चलो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। और अगर इसके रास्ते में एक दूसरा एक बॉल आ जाता है जिसका मास फिर से 5 ग्राम ही है, लेकिन वो रेस्ट में है, इट्स नॉट मूविंग। ओके, सपोज दिस मार्बल बॉल जस्ट कोलाइड्स हेड ऑन, बिल्कुल सीधा सीधा अगर वो इसके ऊपर कोलाइड करता है, तो हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये 5 ग्राम का जो बॉल है वो यहाँ पे जाके रुक जाता है और ये उसका स्पीड लेके आगे बढ़ जाता है, आगे निकल जाता है। देखा ऐसा कभी? यस सर। हाँ, कैन जस्ट सी। ठीक है, कभी कोई बचपन में अगर आपने खेला होगा बॉल या कंचे अगर खेले होंगे, तो उसमें आपको पता रहेगा कि जब ये जो गोली है वो जब, या कैरम भी हम देखते हैं ना, कैरम के अंदर भी बहुत बार हम ये देखते हैं कि जब हम कोई एक कॉइन जो है वो उसको सपोज ट्रैक करते हैं या पुश करते हैं, तो वो सीधा जाके एक दूसरे कॉइन की जगह पे चला जाता है और उधर जो कॉइन होता है वो बिल्कुल उसी स्पीड से आगे निकल जाता है। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हियर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो बॉडी है इसने अपना मोमेंटम इसको दे दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसके पास पहले मोमेंटम था, अभी इसके पास कितना मोमेंटम था, 20 × 5 मतलब 100, ठीक है नहीं, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम इसके पास पहले था। जो इसके साथ कोलाइड होने के बाद क्या हुआ कि ये बॉडी जो है वो आगे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव होने लग गया, जिसकी वजह से अभी उसका मोमेंटम कितना हो गया, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, और इसका कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि इस बॉडी ने खुद का मोमेंटम इस दूसरे वाले बॉडी को दे दिया, ठीक है। देयर इज अ ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग दिस कोलिजन। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा हमेशा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो एक हल्का बॉडी है जो 5 ग्राम का है, ठीक है, और वो भी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये दूसरे बॉडी के ऊपर अगर कोलाइड होता है और वो जो दूसरा वाला जो बॉडी है उसका लेकिन मास ज्यादा है, मान लो 15 ग्राम ये उसका मास है, दूसरे वाले बॉडी का मास है,
तो अब जब ये बॉडी इसके ऊपर कोलाइड करेगा तो जरूर ये जो बॉडी है वो उतना स्पीड लेके तो आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल जितना स्पीड इसका है उतना तो उसका नहीं होगा क्योंकि वो हेवी है, तो उसका स्पीड जरूर कम होगा। लेकिन एक बात जरूर होगी कि जब ये बॉडी इसके ऊपर कोलाइड करेगा या उसके ऊपर जब वो स्ट्राइक करेगा तो मोमेंटम जरूर कंजर्व होगा। जो टोटल मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम आगे भी रहेगा, इसके बाद भी रहेगा। मतलब कोलिजन होने के बाद भी यही होगा कि इस बॉडी के अंदर अगर टोटल मोमेंटम 100 है तो अगर हम देखेंगे बाद में चल के मतलब मतलब कोलिजन होने के बाद अगर हम देखते हैं ये बॉडी किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये बॉडी भी किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, इन दोनों का अगर मोमेंटम हम निकाल के ऐड करेंगे ना तो हमको फिर से 100 ही मिलेगा। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ऐसा कि इस बॉडी का 30 बन जाए, इसका 70 बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसका कुछ अलग 50-50 बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिचुएशन। बट एक बात तो जरूर होगी कि जो इसका टोटल मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम इस बॉडी का भी रहेगा आफ्टर द कोलिजन, नो डाउट। Here we have to understand that the law of conservation of momentum is true in vector form, not only in scalar form but vector form में वो true है। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज अगर मान लो कि एक कैरम जब खेलते हो, सपोज ये कैरम बोर्ड है और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स सेंटर में यहाँ पे रखे हुए हैं। And suppose this is the striker, suppose it strikes this bunch here, तो ये यहाँ पे हमने इस स्ट्राइकर को पुश किया जिसकी वजह से वो कुछ मोमेंटम लेके आगे बढ़ा और वो मोमेंटम लेके इसके ऊपर पटका, ये पूरे बंच के ऊपर पटका। तो जैसे ही वो पटकेगा तो क्या होगा कि कोई कॉइन्स जो है वो इस तरफ निकल जाएंगे, कोई कॉइन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, कोई कॉइन्स इस तरफ जाएंगे, कोई कॉइन्स इस तरफ जाएंगे। वी कैन जस्ट सी दैट देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये दिस स्ट्राइकर विल जस्ट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर कोलाइडिंग, बट डिफरेंट कॉइन्स विल बी मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। हियर इफ वी जस्ट कंसीडर द वेक्टर्स, मोमेंटम वेक्टर्स, सपोज ये इसका जो मोमेंटम है, ये वाले कॉइन का मोमेंटम अगर मान लेते हैं P1 बार है, इस वाले कॉइन का मोमेंटम अगर P2 बार है, इस वाले कॉइन का मोमेंटम अगर सपोज P3 बार है, P4 बार एंड P5 बार and different so on like that, and suppose that the momentum of this striker here is suppose going to be P bar basically। तो अभी देखो स्टार्टिंग में क्या था, ये सारे कॉइन्स तो रेस्ट में थे तो उनके पास तो कोई मोमेंटम था ही नहीं, और जो स्ट्राइकर है वो मोशन में था, उसके पास अकेले के पास मोमेंटम था जो कि P बार के बराबर था। So this P bar here is actually going to be equal to the vector sum of all these momenta, that is P1 bar, P2 bar, P3 bar, P4 bar and P5 bar, या जितने भी होंगे Pn bar। तो accordingly we can just get that this P bar is going to be actually P1 bar plus P2 bar plus dash up to Pn bar, where n is going to be the number of coins or number of objects which take up that momentum। मतलब ये जो momentum है वही स्प्लिट होके इन अलग अलग पार्ट्स में बट गया, और वो भी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में ये सारे वेक्टर्स है, इनको देखो ठीक से, ऑल ऑफ देम आर वेक्टर्स। सो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखो मान लो कि एक बॉडी है जिसके पास कुछ मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, जिसको हम P बार बोल सकते हैं, और वो दो बॉडीज के ऊपर कोलाइड करता है, ठीक है, इस तरह से ये दो बॉडीज के ऊपर वो कोलाइड कर रहा है। और कोलिजन के बाद मान लो कि ये पहला वाला जो बॉडी था वो रेस्ट में आ गया, वो रुक गया, और जिनके ऊपर वो कोलाइड करता है तो ये दोनों बॉडीज एक इस तरफ और एक इस तरफ निकल गया। तो इसको हम बोलेंगे, इसका मोमेंटम है सपोज P1 बार और इसका मोमेंटम सपोज है P2 बार। नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, ये जो P बार है इट इज गोइंग टू बी द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, which is going to be the vector sum of these two momenta after the collision। If we just draw this P1 bar and P2 bar diagrammatically, and if we just draw the parallelogram, and if we just draw the diagonal of this parallelogram, then this diagonal will actually represent in magnitude and direction this momentum of this single coin before the collision। तो ये जो अब ये छोटा बड़ा दिख रहा है, just forget about that। ये this P bar जो है, this P bar will actually the vector sum of this P1 bar and P2 bar। Remember here that P bar is going to be the initial momentum, okay, and P1 bar and P2 bar combined together
is actually going to be the final momentum after the collision. And the law of conservation of tells us simply that the momentum before the collision, total momentum before the collision, is actually going to be same as the total momentum after the collision. ठीक है, in the absence of any external force. ये अच्छी तरह से याद रखना है, यही भूल जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है उसका. ठीक है, if no external force acts on the system of colliding bodies, then the summation of all momenta initial is going to be same as the sum of all final momenta, and that is also in vector form. Okay, this is actually going to be the law of conservation of momentum, or we can also say simply in these simple words that the sum of all momenta of all the particles remains always constant, and this is actually going to be the statement, but only when this force is zero. If external force acting on the whole system is zero, then and then only the algebraic sum of all momenta remains constant during a collision. This is the statement of law of conservation of momentum. You have to remember. Yes, any doubt? कुछ पूछना है? No, sir. देखो, कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है, या चलो एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करो. सपोज यस, एक गन है और उसमें से बुलेट बाहर निकल रहा है. ठीक है, यहाँ पे बुलेट पहले है जो कि अभी रेस्ट में है. ठीक है, अंदर में जब वो रहेगा तब रेस्ट में रहेगा, लेकिन जैसे हम ट्रिगर दबाएंगे तो ये बुलेट उसमें से निकल जाएगा और आगे बढ़ेगा. So suppose that the mass of bullet is suppose going to be small m, and suppose that the velocity of the bullet after fired is suppose small v. ठीक है, so what is the momentum of the bullet after firing? It's going to be m into v. इतना तो समझ सकते हो. ठीक है, but at the same time the gun जो है, gun just gets recoiled. ये गन भी हम देखते हैं ना कि पीछे की तरफ आता है. हमेशा ये देखो ठीक से कि जब भी हम गन फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे निकल जाता है, लेकिन उसकी रिएक्शन की वजह से जो बुलेट है, गन जो है वो पीछे की तरफ आता है, और उसको पकड़ के रखने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो ये जो गन पीछे आता है तो उसका रीजन ये है कि मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड, बिकॉज बुलेट को तो मोमेंटम मिल गया, लेकिन एट द सेम टाइम गन जो है, गन का मास अगर मान लेते हैं कैपिटल M है, और वो अगर पीछे के डायरेक्शन में कैपिटल V इतने स्पीड से अगर मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस गन एक्चुअली? सो वो तो कांस्टेंट होगा ना. क्या क्या? कांस्टेंट माइनस mv. वो तो मूव हो रहा है ना. अच्छा चलो ठीक है, हमने अगर पकड़ के रखा तो फिर कांस्टेंट होगा, तो उस केस में फिर हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे ना. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर सपोज हम उसको पकड़ के नहीं रखते हैं, उसको बिल्कुल फ्री कर माइनस कैपिटल M कैपिटल V. हाँ, और सिंपली ट्रिगर दबा दिया, तो क्या होगा? जैसे गन जैसे बुलेट आगे फायर होगा तो ये गन जो है वो कुछ ना किसी स्पीड से पीछे की तरफ मूव करेगा जरूर, अगर उसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो. मैं बोल रहा हूँ, ठीक है सर मुझे नहीं समझा ये कांस्टेंट होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो फिर जीरो. ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात इमेजिन करो कि अगर एक स्प्रिंग है और इसके साथ ये दो बॉल्स कनेक्टेड है, और ये स्प्रिंग को मैंने अगर कंप्रेस किया, ठीक है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस किया और अभी ये दो बॉल्स इस तरह से है. अभी अगर मैंने इसको अगर रिलीज कर दिया, सडनली रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? ये वाला जो बॉल है वो इस तरफ मूव करेगा और ये वाला बॉल इस तरफ मूव करेगा. इतना समझ सकते हो? और इस केस में ये जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा. मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस होल सिस्टम. ठीक है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है. हाँ, जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो स्प्रिंग की वजह से हो रहा है, उसको हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे, जो कि इस स्प्रिंग की वजह भी काम कर रहा है, इसके ऊपर भी काम कर रहा है, दोनों के ऊपर स्प्रिंग की वजह से ही काम कर रहा है, तो उसको हम इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं. लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये छोड़ने के बाद क्या होगा? ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा,
और दोनों का मोमेंटम जो है वो मतलब जो पहले था उतना ही फिर से बनेगा, नो डाउट। लेकिन अभी अगर सपोज कि ये जो स्प्रिंग है ये मैंने कंप्रेस किया इसको, लेकिन अभी छोड़ने के टाइम देखो ये कंप्रेस किया, लेकिन छोड़ने के टाइम इसको मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है, समझा ठीक से, इसको यहाँ इधर से पकड़ के रखा है। अभी क्या होगा बताओ, जैसे हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ मूव होगा ना आगे, ये थोड़ी हाँ मूव सर। होगा, क्योंकि इसको तो मैंने पकड़ के रखा है। तो इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसको इस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको इस तरफ जाने नहीं दे रहे, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो गया कि नहीं वो। तो जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस केस में हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी अप्लाइड और ओबेड। नो, law of conservation of momentum will not be applied in this case, but it will be applied only in this case because इस केस में ये जो दोनों बॉल्स है वो फ्री है, फ्री है मतलब ये दोनों बिल्कुल फ्री है। जैसे हम उसको छोड़ देंगे तो ये इस तरफ जा सकता है, ये इस तरफ जा सकता है, कोई भी बंधा हुआ नहीं है, किसको भी हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, जो वो उसको किसको भी हमने क्या बोलते हैं उसको अपोज नहीं किया है या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि इस तरफ नहीं जाने का करके, लेकिन इसमें तो किया है ना। तो जब ऐसा रिस्ट्रिक्ट करेंगे मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ब्रेकिंग द रिक्वायर्ड कंडीशन टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल फोर्स शुड नॉट बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो कि यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा। तो सेम वही बात यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लो एक गन जो है वो मैंने टेबल पे रख दिया, टेबल पे, हाँ किसी भी टेबल पे रख दिया, एकदम स्मूथ सरफेस है उसका सपोज, और उसके बाद मैंने इस ट्रिगर को दबा दिया, देखो गन टेबल पे पड़ा हुआ है और उसके बाद मैंने ट्रिगर दबा दिया, तो क्या होगा बताओ, क्या सिर्फ बुलेट आगे जाएगा, गन भी तो पीछे जाएगा, गन भी पीछे जाएगा, पकड़ा ही नहीं है, रिकॉइल। ठीक है, उसको हमने पकड़ के नहीं रखा है, गन को हमने ऐसा नहीं किया कि उसको पकड़ के रखा और उसको पीछे नहीं जाने देने का, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। तो उस केस में जैसे ही बुलेट आगे फायर हो जाएगा तो कुछ न किसी स्पीड से गन भी पीछे की तरफ रिकॉइल होगा, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। V is actually called as recoil velocity, and this the velocity of the bullet here is actually called as muzzle velocity। लेकिन इसमें मुझे बताओ देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि इसमें सबसे पहले जब हमने इस गन को फायर नहीं किया था तो उस समय का मोमेंटम कितना था? 0। गन का तो 0 था, बुलेट का 0 पक्का। तो उसको हम बोल सकते हैं कि 0 + 0 इज एक्चुअली गोइंग टू बी द इनिशियल मोमेंटम। ये 0 मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 0, बिकॉज गन वाज एट रेस्ट as well as bullet was also at rest and therefore the total momentum was 0 before the collision। okay, लेकिन अभी जब कोलिजन हो गया, मतलब सॉरी कोलिजन नहीं, क्या बोलेंगे उसको, एक्सप्लोजन बोलेंगे, एक्सप्लोजन। जब एक्सप्लोजन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, बुलेट तो मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम कितना है, m/v के बराबर है, ठीक है। अभी गन का मोमेंटम कितना है? -mv, कैपिटल M कैपिटल V। कैपिटल M इंटू कैपिटल V, ये गन का मोमेंटम हो गया, but it should be taken as negative because it is directed in the negative direction of x-axis which is accompanied by -I bar actually, so -m/v को बोल सकते हैं। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे हुआ है या नहीं हुआ है? इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, क्या फाइनल मोमेंटम भी 0 है? फाइनल मोमेंटम देखो मतलब एक्सप्लोजन के बाद ना बुलेट रेस में है ना गन रेस में है, दोनों मोशन में है, तो क्या दोनों का मोमेंटम का वेक्टर सम 0 है या नहीं है? क्या समझते हो? अरे देखो मास इनटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, तो यहाँ पे ये जो गन बुलेट का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर है और जो गन का मोमेंटम है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर है, और दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है, मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है। तो जब ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है जिसको हम 5I बार बोल सकते हैं और दूसरा वेक्टर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में है और उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो उसको हम क्या बोल सकते तो हैं? कैंसल आउट हो जाएगा, 5I बार बोल सकते हैं। अभी जब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करने जाएंगे तो क्या होगा?
zero. Yes, जीरो आएगा, plus minus 5 I bar. Actually, we'll get Zero I cancelled bar. and we'll get a Zero. null vector. Null vector. null. इवन अगर ट्रायंगल लॉ या पैराग्राम लॉ यूज करके भी अगर इसको ऐड करो तो भी नल वेक्टर ही आने वाला है, देखो करके। क्योंकि अगर दो वेक्टर्स अगर थोड़ा भी एंगल पे अगर रहते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आता ही है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में का जो एंगल है तो वो एंगल हम सपोज अगर बढ़ाते चले जाते हैं, इस तरह से थोड़ा बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बिल्कुल 180 कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये रिजल्टेंट जो है वो तो धीरे धीरे कम होता जाएगा कि नहीं। कम होकर जाएगा, इस तरफ होगा। गायब हो जाएगा। तो पैराग्राम लॉ के हिसाब से ये जो रिजल्टेंट है ये इतना ही बचेगा, और अगर एंगल बढ़ाते हैं तो ये धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, मतलब जीरो ही बन जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो मोमेंटम्स है, ये मोमेंटम एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, भले मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसका जो रिजल्टेंट है वो हम बोल सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी जीरो, एंड दैट इज द मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और एक्सप्लोजन। सो जो मोमेंटम जीरो पहले था वही मोमेंटम हमको बाद में भी मिल रहा है, जिसका मतलब यही है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज बीन ओबेड हियर। Yes, sir. यस, ओके। सो इन दिस वे अभी इसमें भी एक बात देखो कि इसका भी क्या गारंटी है कि ये दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। उसका रीजन ये है कि मास ऑफ बुलेट इज वेरी स्मॉल बट इट्स वेलोसिटी इज वेरी लार्ज, whereas the mass of gun is so large but its velocity is very small, so the product is compensated actually। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर दो चीज का अगर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो मान लो एक 100 प्रोडक्ट आने वाला है, लेकिन इसमें एक जो मास है सपोज 5 है और वेलोसिटी 20 है, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पे सपोज ये जो मास है वो अगर मान लो 25 है जो कि बहुत बड़ा है, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, ये जो दूसरे का वेलोसिटी है, मतलब ये जो दूसरा प्रोडक्ट है मतलब फैक्टर है वो छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 into 20 का भी प्रोडक्ट 100 ही है और 25 into 4 का भी प्रोडक्ट 100 ही है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है ना कि ये 5 इज गोइंग टू बी द मास ऑफ बुलेट एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट विच इज वेरी लार्ज। तो बुलेट के बारे में क्या है, मास छोटा है लेकिन वेलोसिटी बड़ा है। लेकिन गन के बारे में अगर बात करते हैं तो मास बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से उसका वेलोसिटी छोटा है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर जो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो रोल था वो इधर के मास ने कॉम्पेंसेट कर दिया, मास बड़ा होने की वजह से प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि इन केस ऑफ फायरिंग ऑफ द गन ऑलवेज इट्स ऑब्जर्व्ड दैट द मास ऑफ गन इनटू द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन is always equal to the mass of bullet into the muzzle velocity of the bullet. This is always observed because इसको अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से हम ये मैग्नीट्यूड्स में ये रिलेशनशिप देख पाएंगे कि the product of mass and velocity of bullet and gun always remains the constant, always remains the same. So this is one of the application of the law of conservation of momentum. इससे भी आगे जाके कोई भी एक्सप्लोजन जब होता है या बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है, मान लो ये बॉम्ब है और वो 3 टुकड़े में बट गया, देखो ये इस तरह से 3 टुकड़ों में के अंदर बटने वाला है। तो ये एक टुकड़ा इस तरफ थ्रो किया जाएगा, एक टुकड़ा इस तरफ चला गया और एक टुकड़ा इस तरफ भाग गया। अब ये तीनों जो टुकड़े हैं इन तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मास अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे by using triangle law or parallelogram law, then we can be able to find that the sum of any two of them is just exactly opposite of the third one. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी एक का सम करो, कोई भी दो का सम करो, यस अगर इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ऐसा एक वेक्टर हमको मिलेगा और वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट में रहेगा, जिसके कारण ये दोनों का जो सम है वो एक्चुअली जीरो आ जाएगा। तो भले अलग अलग टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो किए जा रहे हैं, लेकिन होता यही है कि इन सब का अगर मोमेंटम अगर इकट्ठा करो, इन सब का टोटल मोमेंटम अगर जमा करो, वेक्टर फॉर्म में अगर ऐड करो,
तो वो एक्चुअली नल वेक्टर बनता है। तो ये हमको समझना है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म, रिमेंबर। ओके, yes, so this is all about the law of conservation of momentum, which is one of the important tool in using the in MCQs और in the numericals. अच्छा, और एक बात कि मैंने लास्ट टाइम मतलब कल के लेक्चर के बाद मैंने आपको चैट के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आप सबको मिले क्या? वो चैट के अंदर आपको दिख रहे हैं सबको? मैंने बोला था कि 90 से लेके 100 तक के सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करके सबमिट करने हैं। सर मुझे सिर्फ वो टेक्स्ट दिखा कि 90 से 100 तक सॉल्व करने, बट वो कहाँ है वो नहीं दिखा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी किसको कंफ्यूजन होता रहेगा। तो वो जो डायनेमिक्स का मैंने एक आपको एक शेयर लिंक्स में नहीं, डाउनलोड सेक्शन में स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने एक डायनेमिक्स करके एक सेपरेट PDF फाइल शेयर किया है। जस्ट गो थ्रू इट। तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन डरो मत। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है, इतने 500 200 300 क्वेश्चंस है, तो इतने सारे सॉल्व करने हैं क्या, ऐसा डरो मत। जस्ट ऐसा करो कि इसमें से जो जो क्वेश्चंस हम जैसे जैसे टॉपिक आगे लेके जाएंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता रहना चाहूंगा कि उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो वो सॉल्व करना है। तो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने आज के लेक्चर में जो किया या कल के लेक्चर में जो किया, तो वो अगर आप अगर वो क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना तो उससे और आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस है और सिंपल है, सभी नहीं कि एकदम बहुत हार्ड है। उसमें भी क्या है ना कि जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली CET और अपना जो बोर्ड का लेवल जो होता है, मतलब बोर्ड के अंदर जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के है। फिर लेवल 3 के जो क्वेश्चंस है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली नीट के लेवल के है। मतलब जिनको नीट करना है उनको लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 तक करना पड़ेगा, और जिनको JEE मेंस तक करना है तो लेवल 4 तक भी जाना पड़ेगा, और जिनको JEE एडवांस भी करना है तो लेवल 5 तक भी जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो इस तरह से लेवल वाइज है। बट जस्ट मतलब कोई भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जस्ट सिंपली तुमको जो हमने यहाँ पे किया है वो सिर्फ अप्लाई करने के लिए ट्राई करना है। और उसमें अगर कुछ डाउट आता है, अगर आपको नहीं आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर पॉसिबल नहीं होता है तो जस्ट पुट इन चैट बॉक्स क्या वी आर नॉट, आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन के अंदर कुछ थोड़ा डाउट आ रहा है या डिफिकल्टी हो रहा है, तो वो उसमें भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में जब लेक्चर होता है तो उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट तुम्हारी तरफ से कंटिन्यूसली वर्किंग होना जरूरी है। ठीक है, तुम्हारी तरफ से वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा होना चाहिए जरूर। ठीक है, तो सर हम क्वेश्चन से क्लास नहीं ले सकते क्या? क्या चीज? मतलब क्वेश्चन अगर अगर हम हमारे जो भी फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है उसके लिए कोई सेपरेट क्लास नहीं अटेंड कर सकते क्या? मतलब क्लास नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना, तो तुम डाउट सेशन तुम बुक करो तो हो जाएगा ना, वो भी कर सकते हैं। नहीं सबके लिए मतलब ऐसे अच्छा, सॉल्विंग मतलब बस उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्विंग ओनली, राइट। अगर आपको 3 बजे है टाइम तो हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप सुबह लेने वाले थे ना लेक्चर? सुबह का कैसा है ना कि 2-3 प्रॉब्लम है उसमें। एक सबसे पहला तो ये कि कोई कोई जो बच्चे हैं वो रात में जागते हैं। मैंने बीच में बात भी की थी ना कोई जो बच्चों से पर्सनली, तो कोई कोई बोल रहे थे कि रात को जागना पड़ता है तो उसकी वजह से सवेरे फिर उठना पॉसिबल नहीं होगा। ये थोड़े से कोई कोई बोल रहे थे। और भी एक दो कॉलेज के तो कॉलेजेस ही चल रहे हैं, एक दो स्टूडेंट के, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। बट अगर 3 बजे अगर है पॉसिबल तो फिर वो कम कर सकते हैं, या 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मतलब ऐसे 2-3 दिन के बाद एक ऐसा हम्म। मतलब वीक में चलेगा लेक्चर्स चलेगा, बस लेकिन क्वेश्चन आप के। अगर डाउट सॉल्व करेंगे तो फिर वो हो सकेगा। लेकिन अगर आप डाउट सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मैं सॉल्व करते जाऊंगा फिर उसमें कोई फायदा नहीं है उसका। सर ऐसे कंसेप्ट वाइज समझता है बट वो क्वेश्चन आता है तो फिर नहीं वही समझ। ना, राइट। लेकिन वो आप ट्राई करो पहले। बिना आपके ट्राई किए वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग, कोई फायदा नहीं है उसका। चलो ठीक है, ऐसा करेंगे, ये जो 10 क्वेश्चंस है तो वो आप पहले ट्राई करो,
ठीक है, और जितना भी आपसे बनता है वो सबमिट करो, ठीक है। तो उसके बाद फिर परसों हम उसके ऊपर सेशन ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। और आज भी मैं कुछ 90 क्वेश्चन to डालता 100 हूँ। तक, हाँ बोलो। 90 to 100 तक। हाँ 90 to 100, और वो बिल्कुल सिंपल सिंपल ही है, जो कल हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर ही बेस्ट है। अभी आज जो हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ट है वो मैं आज डालता हूँ, ठीक है। तो वो भी सॉल्व करना। चलो ठीक है, सो स्टॉप हियर।